Good morning, students. Today we are going to read the third chapter of macroeconomics, and the topic is national income and related aggregates. At macro level, the concept of income is used both as domestic concept and national concept. Okay, when the concept of income is used as a domestic concept, that is called domestic income, and when the concept of income is used as a national concept, that is called national income. So let us understand the definition of domestic income and national income more clearly. The sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country in an accounting year is called domestic income, no matter who generates it, normal residents or non-residents. It means it doesn't matter whether the output is produced by the normal residents or non-residents of a country, but it should be produced within the domestic territory of the country in an accounting year. Now, national income is the sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country in an accounting year, no matter where it is generated, within the domestic territory or outside. It means it doesn't matter whether the output is generated within the domestic territory or outside, but it should be produced by the normal residents of a country in an accounting year. Okay, so this is your domestic income and this one is your national income. So if we carefully understand the definition of domestic income and national income, then we will find one term common, that is your factor income. The sum total of factor incomes generated within the domestic territory and the sum total of factor incomes earned by the normal residents. So here the normal factor income is common. Okay, another one is your normal resident, and the third one is your domestic territory. So we will understand these three concepts very clearly. First one is your factor incomes. The incomes received by the households from firms for their factor services is called factor incomes. So as I told you in the previous chapter, the household sector is the owner of factor services, and factor services are of four types: labor, land, capital and entrepreneur. So the household sector provides labor and earn wages, and the household sector provides land to earn rent, and the household sector provides capital to earn interest, and the household sector earns profit by providing entrepreneurial skill to the farm sector. So these are known as your factor incomes. Okay, wages for labor, rent for land, interest for capital and profit for entrepreneur. Now what is the difference between your factor income and transfer income? Factor income, as I said, the income which is received by a person for rendering his factor services. So factor income means the income that is received by a person by providing his factor services. Factor services means land, labor, capital and entrepreneur. Okay, this is called a factor income. On the other hand, transfer income means the income which is received by a person without rendering any factor service. Rather, the income is received by a person as help or donation or charity. Okay, is called your transfer income. Now second difference is factor income is an earned income, means the income is earned by the person by providing his services. On the other hand, transfer income is unearned. It means this income is not earned, rather it is received as help or donation. That means the income, the transfer income is not earned, it is received without providing any factor services. Now the third one is factor income is included in the estimation of national income, but transfer income is not included in the estimation of national income. Okay, factor income is included because it leads to the production of goods and services.
Transfer income is not included because it does not lead to the production of any goods and services in the economy. Okay, clear? Now, next one is your normal resident. Normal resident can be a person or an organization or an agency who ordinarily resides in the country for a period of 1 year or more, and his center of economic interest lies in that country. So a person or an organization or an agency must satisfy two criteria, that is, the person should reside in the country for a period of 1 year or more. This one is the first criteria, and second one is his center of economic interest. Center of economic interest must lie in the same country. So the question is, what do you mean by economic interest? Economic interest means the interest of the person that is related to your income, expenditure, your investment, etc. Okay, is known as economic interest. So a person must satisfy two criteria, two conditions. First one is he should reside in the country for a period of 1 year or more, and his center of economic interest must lie with the same country. Now, international organizations like World Bank, IMF, etc. are not the normal residents of any country. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होता है. ओके, बट द पीपल वर्किंग इन दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, दे आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री. ठीक है, लेकिन उसमें जो लोग काम करते हैं वो लोग जिस देश को बिलोंग करते हैं वो लोग उसी देश के ही नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं. क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री. जो क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स हैं, मतलब जो वर्कर्स डेली बॉर्डर पार करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, काम करते हैं, फिर उसी दिन वापस आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं. इस तरह से जो वर्कर डेली बॉर्डर पार करते हैं उससे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स. और वो जो क्रॉस बॉर्डर वर्कर होते हैं वो लोग अपने अपने देश के ही नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं. क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री. द लास्ट वन इज ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री. कोई भी देश के ऑफिशियल्स होते हैं, कि डिप्लोमेट होते हैं, कि आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग दूसरे देश में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, महीना भर रहते हैं, सालों भर रहते हैं, फिर भी वो लोग अपने ही देश के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं. जो देश को वो लोग बिलोंग करते हैं उसी देश के ही वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं. ओके, नाउ द थर्ड वन इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज योर इकोनॉमिक टेरिटरी. Okay, so domestic territory of a country is the area where persons, goods and capital of the same country circulates freely. ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसका कैसे समझते हैं इसको. देखिए, समझ लीजिए कि हमारा देश, इस देश में ऐसा भी कुछ एरिया है जहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है. जैसे हमारे देश में दूसरे देश के एम्बेसी रहते हैं, पाकिस्तान का एम्बेसी है, इंग्लैंड का एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है. तो अगर हम लोग चाहेंगे तो ये एम्बेसी में नहीं जा सकते हैं, जबकि ये सारे के सारे एम्बेसी हमारे देश में हैं. ठीक है, लेकिन जो इंडियन एम्बेसी है, जो बाहर है, देश के बाहर है, पाकिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी है, अमेरिका में भी इंडियन एम्बेसी है, इंग्लैंड में भी इंडियन एम्बेसी है. तो एज एन इंडियन अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो वो एम्बेसी में हम लोग मूव कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं जाके फ्रीली. मतलब समझे, मतलब ऐसा हुआ कि एक एरिया हमारे देश में है लेकिन हम लोग वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं, और एक एरिया बाहर है और वहाँ पे हम लोग मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो इंडियन एम्बेसी रिजाइडिंग outside our country is a part of our domestic territory, whereas Pakistan embassy which is residing in our country but it is not a part of our domestic territory. Okay,
नाउ टेरिटोरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ ए कंट्री। जैसे अगर किसी भी देश का टेरिटोरी के साथ सटा हुआ जो पानी है जिसे कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर, तो ये जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी उसी देश का डोमेस्टिक टेरिटोरी में आता है। ठीक है, जैसे हमारा साउदर्न पार्ट में जो आपका इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटोरी में आता है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस इंडियन ओशन is also a part of our domestic territory. Okay, ships, aircrafts operated by residents of the country across different parts of the world is also a part of domestic territory. For example, Air India, मान लीजिए कि it is operated by Indian resident जो कि फ्रांस से पैसेंजर उठाता है और उनको लेके जाता है जर्मनी तक, फिर जर्मनी से पैसेंजर लेके आता है और उनको फिर फ्रांस में पहुंचा देता है। तो ये जो रूट हुआ फ्रॉम फ्रांस टू जर्मनी, ये रूट भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटोरी में आता है। एंड द सेम इज़ विद शिप्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एट्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर मतलब जिस पानी में किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं रहता है, जैसे आपका इंडियन ओशन तो इतना बड़ा है, उसका कुछ डिस्टेंस अप टू सर्टेन डिस्टेंस तक हमारा डोमेस्टिक टेरिटोरी में आएगा, लेकिन रेस्ट वो किसी के डोमेस्टिक टेरिटोरी में नहीं आता है, तो उसे कहते हैं आपका इंटरनेशनल वाटर। तो उस तरह का इंटरनेशनल वाटर में कोई भी देश का फिशिंग वेसल अगर वो मछली पकड़ने जाता है जहाज़ लेके, या वहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, वहाँ पे समंदर के नीचे से वो लोग पेट्रोलियम निकालते हैं कि नेचुरल गैस निकालते हैं, तो जो देश का जहाज़ वहाँ गया है, जो देश वहाँ पे पहुँच के ऑयल एंड पेट्रोलियम निकाल रहे हैं कि नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, वो एरिया भी उसी देश का डोमेस्टिक टेरिटोरी में आएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज़ एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। किसी भी देश का एम्बेसी, जैसे अभी पहले बताया इसका डेफिनेशन जो बताए थे, तो किसी भी देश का एम्बेसी वो किसी और देश में क्यों ना हो, किसी भी देश का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी और देश में क्यों ना हो, लेकिन वो एम्बेसी या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स अपने जो देश को वो लोग बिलोंग करते हैं उसी का ही डोमेस्टिक टेरिटोरी में रहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर कन्वर्सन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA or national income is equal to domestic income plus NFIA. So we have understood national income and domestic income. Now what do you mean by NFIA? The full form of NFIA is net factor income from abroad, and the formula is factor income earned by domestic residents from abroad minus factor income earned by non-residents in our domestic territory. इसका मतलब हो गया कि हमारे देश के जो रेजिडेंट्स हैं, मान लीजिए कि वो लोग बाहर काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करेंगे तो उनको तो पैसा मिलेगा, तो वो हो गया हमारे देश का इनकम, वो हमारे देश का फैक्टर इनकम हुआ। उसी तरह से दूसरे देश के जो लोग आके हमारे देश में रहते हैं, जिसको हम लोग नॉन रेजिडेंट कहते हैं, वो लोग हमारे देश में काम करते हैं तो हम उनको पैसा देंगे ना, तो वो हो गया उस देश का इनकम। क्लियर हो गया, वो देश का इनकम हो गया, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो ये हमारे देश के रेसिडेंट दूसरे देश में काम करते हैं, जो पैसा लाते हैं वो हमारा फैक्टर इनकम, और दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में रहते हैं और काम करते हैं पैसा लेते हैं वो हो गया उस देश का फैक्टर इनकम। इस तरह से ये दोनों का अगर हम लोग माइनस करेंगे तो बन जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब हो गया रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम के साथ कितना सारा एग्रीगेट्स जुड़ा हुआ रहता है, इसको समझने के लिए पहले ये टर्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये टर्म को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग बताए थे, ग्रॉस और नेट ये दोनों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम हो गया डेप्रिसिएशन। ग्रॉस एक ब्रॉड टर्म होता है और नेट हो गया एक नैरो टर्म। अगर ये
ब्रॉड को नैरो बनाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अगर ये नैरो को ब्रॉड करना है तो उसको डिप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। ठीक है, उसी तरह से नेशनल भी ब्रॉड टर्म, डोमेस्टिक नैरो हो गया। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में आता है NFIA, अभी बताया भी। तो नेशनल को अगर डोमेस्टिक बनाना है तो NFIA को माइनस करेंगे, और डोमेस्टिक को अगर नेशनल बनाना है तो NFIA को प्लस करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हो गया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों के बीच में आता है NIT। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को जोड़ने वाला जो ब्रिज है उस ब्रिज का नाम हो गया NIT। NIT फुल फॉर्म हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, उस तरह से अगर हम लोग मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना चाहते हैं, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट बनाना चाहेंगे तो NIT को माइनस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस बनाना चाहते हैं तो NIT को प्लस करेंगे। ओके, अब देखिए ये टर्म कैसे बनाता है, जो रिलेटेड टर्म्स है कैसे बनता है वो। जैसे ये हो गया ग्रॉस, ये हो गया नेट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पता है ये ग्रॉस ये नेट। ठीक है, उस तरह से GN ग्रॉस नेट, फिर हो गया N मतलब नेशनल, D मतलब डोमेस्टिक हो गया, P मतलब प्रोडक्ट, फिर MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। अब कैसे बनता है देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया, फिर उसके बाद हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो गया, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। इस तरह से फिर नेट को यूज़ करके ये फिर 4 नाम बनेगा। क्लियर हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से जो NNPFC है इसे कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, इसे कहते हैं नेशनल इनकम, और जो NDPFC है इसे कहते हैं आपका डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा नॉमिनल एंड रियल इनकम। तो नॉमिनल GDP इज ऑल्सो नोन एज GDP एट करेंट प्राइस। ठीक है, क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो उस इंडेक्स नंबर में हम लोग पढ़े थे आपका करेंट ईयर क्या है, बेस ईयर क्या है, करेंट ईयर प्राइस क्या है, बेस ईयर प्राइस क्या है, पढ़े थे ये सब चीज़, वही यहाँ पे अप्लाई होता है। तो GDP एट करेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल GDP। इसका मतलब हो गया व्हेन GDP ऑफ ए कंट्री इज एस्टिमेटेड एट करेंट ईयर प्राइस। करेंट ईयर प्राइस में किसी भी देश का GDP अगर हम लोग हिसाब करते हैं तो उसे कहा जाता है नॉमिनल GDP। फॉर्मूला हो गया P इंटू Q। Q का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी साल में जो आउटपुट का क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है वो Q हो गया, और उसी ईयर में ड्यूरिंग द सेम ईयर उन सामान का जो दाम था उस दाम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नॉमिनल GDP। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रियल GDP। रियल GDP मतलब हो गया GDP एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस। ठीक है, इट मीन्स व्हेन द GDP ऑफ ए कंट्री इज एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस में अगर किसी भी देश का GDP को हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो उसे कहा जाता है रियल GDP। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा उसका, रियल GDP इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, कोई भी अकाउंटिंग ईयर में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग बेस ईयर। मतलब बेस ईयर में जो दाम था उसी दाम के साथ अभी जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसका क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बेस ईयर प्राइस के साथ अभी का क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे रियल GDP, और अभी के प्राइस के साथ अभी का क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनल GDP। ठीक है, अब हो गया इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रियल GDP और नॉमिनल GDP को कन्वर्ट करने का तरीका हो गया, प्रोसेस हो गया आपका प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे GDP यूज़ करते हैं इसीलिए हो गया GDP डिफ्लेटर। ठीक है, GDP डिफ्लेटर इज अ रेशियो ऑफ नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। तो इसका फॉर्मूला भी वही हो गया, GDP डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। तो ये नॉमिनल GDP की जगह पे अगर कोई GDP एट करेंट ईयर प्राइस लिखेगा
और रियल जीडीपी की जगह पे अगर कोई जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लिखेगा तो भी सही होगा उसका। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, या तो जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंटू 100, वो भी सही होगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी का मतलब हो गया इनकम, मतलब इनकम और वेलफेयर, किसी भी देश का इनकम और वेलफेयर कैसे जुड़े हुए रहते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली ये होता है कि अगर देश का इनकम बढ़ता है तो उसका वेलफेयर भी बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि इनकम अगर बढ़ेगा तो लोग डिमांड सेटिस्फाई कर पाएंगे, और लोगों का नीड अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब वो लोग खुश हैं, तो वेलफेयर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़े जीडीपी आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रियल जीडीपी, अनदर वन इज योर नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है, प्राइस खाली बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वही रहता है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ेगा उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो ऑब्वियसली आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें लोगों को वेलफेयर नहीं मिलेगा, क्यों, दाम बढ़ने से लोग खुश नहीं होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप रियल जीडीपी में। रियल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस बढ़ता नहीं है, प्राइस तो वही है, बेस ईयर प्राइस है, लेकिन आउटपुट बढ़ गया, दाम वही है और आउटपुट बढ़ा, तो लोगों को वही दाम में ज़्यादा सामान मिला तो लोग ज़्यादा खुश होंगे, तो वेलफेयर बढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन रियल जीडीपी लीड्स टू इंक्रीज इन वेलफेयर। ठीक है, इट मीन्स रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो अगर हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर करेंगे तो रियल जीडीपी जो है आपका वेलफेयर का एक ट्रू इंडिकेटर बनता है। लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब रियल जीडीपी भी वेलफेयर को सही तरह से इंडिकेट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, एंड दोस आर नोन एज द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो क्या क्या है वो, सबसे पहले होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक इकोनॉमी में इनकम अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर जो है वो फॉल कर जाता है। ठीक है, अगर इनकम सबके बीच में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सबका इनकम बढ़ेगा, और इनकम अगर बढ़ता है तो लोगों में परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और परचेजिंग पावर बढ़ने से उनका वेलफेयर भी बढ़ता है। समझ गए, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही नहीं होता है तो देश का इनकम बढ़ने के बावजूद इंडिविजुअल का इनकम नहीं बढ़ सकता है, और इंडिविजुअल का इनकम अगर नहीं बढ़ेगा तो उसका वेलफेयर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी जो है वो एक देश में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, जो क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसका रेस्पेक्टिव प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और आपका जीडीपी निकलता है। तो हमारे देश में तो बहुत तरह का सामान प्रोड्यूस होता है, जैसे हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फिर हो गया पीस टाइम गुड्स, वॉर टाइम गुड्स। तो इसमें से एक आता है आपका वॉर टाइम गुड्स, मतलब जिसको हम लोग डिफेंस गुड्स भी कहते हैं, जैसे कि आपका टैंक, बॉम्ब, बुलेट्स, गन्स, ये सब बनता है। तो ये सब बनने से देश का इनकम बढ़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इस बुलेट से या गन से या बॉम्ब से लोगों को किस वेलफेयर मिलता होगा? मिलता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वेलफेयर है, क्योंकि ये जो डिफेंस गुड्स है इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है पीसफुल रहता है, और एनवायरनमेंट पीसफुल रहने की वजह से देश के अंदर जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी है वो स्मूथ होता है। ठीक है, तो डिफेंस गुड्स से देश का इनकम बढ़ता है, लोगों को इनडायरेक्ट वेलफेयर मिलता है, लेकिन डायरेक्ट वेलफेयर नहीं मिलता। थर्ड वन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब होता है बार्टर सिस्टम। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होता है, मतलब बार्टर सिस्टम होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है। तो सामान के बदले अगर सामान एक्सचेंज होता है तो जो लोग हैं वो लोग अपना नीड को सेटिस्फाई कर पाते हैं। अगर वो लोग अपने नीड को सेटिस्फाई कर पाए तो उनको वेलफेयर मिला ना। लेकिन ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है इससे
जो जीडीपी एस्टिमेट करता है हमारे देश का, जो इंस्टीट्यूट हमारे देश का जीडीपी एस्टिमेट करता है, इस तरह का नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को वो कंसिडर नहीं करता है। मतलब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस अंडर एस्टिमेट द वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके, नाउ द लास्ट वन, एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनाल्टी फॉर दैट एक्टिविटी। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई प्राइस या पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सटर्नलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड सेकेंड वन इज योर निगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, एग्जाम्पल देते हैं। देखो, मान लीजिए कि आपका जो गार्डन है, बगीचा है, उस बगीचे में अगर आप कोई पेड़ लगाते हो, ठीक है, आपने ले लगाओगे उसको, लेकिन वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा, क्या सिर्फ आप ही उसको यूज़ करोगे? उसको सोसाइटी यूज़ करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास जो रहते हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो लोग पेड़ नहीं लगाए, आप ही लगाए, आपके घर में जो बगीचा है वहाँ पे लगाए, तो वहाँ पे जो पेड़ लगाते हैं वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा, खाली आप ही घर में रहेगा वो तो सभी तरफ जाएगा। तो एक्टिविटी हुआ आपका, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वो सबको मिला, सोसाइटी को मिला, इसे कहते हैं आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसका अपोजिट क्या होगा, मान लीजिए कि आपके बगीचे में जो पेड़ है, आप अगर उसको काटोगे, कोई मना करेगा? कोई नहीं मरा, आपका पेड़ है तो आप काट सकते हो उसको, लेकिन आपका पेड़ अगर आप काटोगे तो वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलता था वो बंद हो जाएगा ना, ठीक है। वो पेड़ के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता था वो रुक जाएगा ना। उस पेड़ के वजह से जो एनवायरनमेंट जो ठंडा रहता था वो भी कम हो जाएगा ना। तो एक्टिविटी किसका हुआ? आपका हुआ, और इसकी वजह से सोसाइटी को निगेटिव इम्पेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो एक्टिविटी आपका, उसकी वजह से सोसाइटी को लॉस हुआ, तो इसे कहते हैं आपका नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।